نیوز کے ساتھ میں ہوں لاریب تصویر اور میں ہوں منیب عباسی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ قاسم سوری کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کشمیر کا مقدمہ بین الاقوامی سطح پر بڑی جرات مندانہ انداز میں پیش کیا۔ صدر ریاست سردار مسعود خان کی ایوان صدر میں میڈیا سے گفتگو۔ قاسم سوری صاحب جو ہے انہوں نے ماضی قریب میں مقدمہ کشمیر جو ہے بین الاقوامی سطح پر پیش کیا ہے اور بہت کامیابی کے ساتھ، بہت جرات مندی کے ساتھ پیش کیا ہے، جس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ آزاد کشمیر کے لوگ اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ، پورے جموں و کشمیر کے لوگ اور پورے پاکستان کے لوگ ان کے شکر گزار ہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ قاسم سوری جیسے قائدین جو ہیں وہ پارلیمنٹری ڈپلومیسی، پارلیمانی ڈپلومیسی میں ایک بہت ہی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میں نے ابھی چند ہی دن پہلے یہ اپیل کی ہے پاکستانی پارٹیوں کو کہ جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو ہے فروئی سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں وہ ساری کی ساری متفق ہیں، تو میری ان سے یہ اپیل ہے کہ وہ ان تمام اختلافات سے بالاتر ہو کر کشمیر کے اوپر اپنا ایک مشترکہ لائحہ عمل ترتیب دے کے اپنا پیغام دنیا کے ایوانوں میں پہنچائیں، اور اس کے بعد جو ہے دنیا کی جو پارلیمنٹس ہیں، انٹر پارلیمنٹری یونین ہے جس میں ان کا خاصا اثر و رسوخ ہے، یا جو ویسے جو ہے سیاسی جماعتیں دنیا کی ہیں، ان تک اپنا پیغام پہنچائیں تاکہ کشمیریوں کو انصاف مل سکے اور کشمیریوں کے اوپر جو قیامت ڈھائی جاتی ہے ہر روز، وہ سلسلہ ختم کیا جائے۔ ان سے ان کی زمین چھینی جا رہی ہے، باہر سے ہندو لا کے آباد کیے جا رہے ہیں اس علاقے میں، ہر روز کشمیری نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو پاکستانی سیاسی جماعتیں ہیں، جو پارلیمنٹری لیڈر ہیں، وہ ایک بہت اہم، مؤثر اور کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ان میں سے جو ایک شخصیت ہیں قاسم سوری صاحب بنفس نفیس یہاں تشریف لائے ہیں تاکہ اہل جموں و کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کر سکیں۔ دوسری چیز یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اس سلسلے میں کچھ کوششیں ہو رہی ہیں کہ جو کوئی یہاں جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی کی فضا کے لیے راستے ہموار کیے جائیں، اور جو اہل جموں و کشمیر ہیں، اہل پاکستان، وہ ہمیشہ ان کوششوں میں ہمیشہ آگے رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے اس پورے کے پورے علاقے میں جو ہے ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ امن و سلامتی ہو۔ اہل جموں و کشمیر کا یہ پیغام ہے، اور پاکستان کے تمام عوام اس سے متفق ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو حل کیے بغیر، کشمیر کے اوپر ظلم کو ختم کیے بغیر، یا 5 اگست 2019 کو جو ہندوستان نے جارحانہ اقدامات کیے تھے اور اس طریقے سے جو ہے مقبوضہ علاقے کے حصے بکھرے کر دیے تھے، اور اب باہر سے لا کے جو ہے غیر قانونی آباد کاری کی جا رہی ہے، جب تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا تب تک ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اعتماد بحال نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ میر ویز کشمیر مولانا محمد یوسف اور ان کے خاندان نے کشمیری عوام کو دین اسلام سے وابستہ رکھنے، انہیں آزادی رحم سے ہمکنار کرنے کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ وہ کشمیری عوام کے سچے خیر خواہ تھے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان نے کہا کہ میر وائز کشمیر مولانا محمد یوسف شاہ اور ان کے خاندان نے کشمیری عوام کو دین اسلام سے وابستہ رکھنے اور انہیں آزادی کی نعمت سے ہمکنار کرنے کے لیے گراں قدر خدمات انجام دیں۔ وہ کشمیری عوام کے سچے بہی خواہ تھے جنہوں نے ایک طرف انہیں اسلامی تعلیمات سے نوازنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھی تو دوسری طرف انہیں اتحاد اور یگانیت کا درس دیا۔ ان کی نگاہ دوربین نے دیکھ لیا تھا کہ مسلمانوں میں جس چیز کی کمی ہے وہ اتحاد اور اتفاق ہے، جس کے بغیر کوئی بھی قوم اپنے قومی مقاصد حاصل نہیں کر سکتی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میر وائز کشمیر مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ آزاد جموں کشمیر کی تعمیر و ترقی میں گہری دلچسپی لی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میر وائز نے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ آزاد جموں کشمیر کی تعمیر و ترقی میں گہری دلچسپی لی۔ انہوں نے اسلامی ممالک کے دورے بھی کیے۔ قرآن مجید کا کشمیری زبان میں ترجمہ اور تفسیر ان کا ایسا بڑا کارنامہ ہے جسے قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ اب کچھ بات کرتے ہیں آزاد کشمیر کے انتخابات کی۔ مسلم لیگ نون نے پیر سے امیدواروں کے انٹرویو کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پارلیمانی بورڈ 5 روز مسلسل امیدواروں کے انٹرویوز کرے گا۔ صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف کی پیر سے جمعہ تک انٹرویوز مکمل کرنے کی ہدایت۔ آزاد کشمیر انتخابات، مسلم لیگ نون نے امیدواروں کے انٹرویو کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مسلم لیگ نون کا پارلیمانی بورڈ 5 روز مسلسل امیدواروں کے انٹرویوز کرے گا۔ صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف کی پیر سے جمعہ تک انٹرویو
इंटरव्यूज मुकम्मल करने की हदायत। पार्लिमानी बोर्ड इंटरव्यूज मुकम्मल करके हतमी नामों को इलेक्शन टिकट जारी करेगा। पार्लिमानी बोर्ड के इंटरव्यूज में नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज भी शिरकत करेंगी। आजाद जम्मू कश्मीर के आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए 198 ख्वाहिशमंद मैदान में आ गए। आजाद जम्मू कश्मीर के 45 हलकों के लिए उम्मीदवारों को टिकट जारी किए जाएंगे। पहले मीरपुर, फिर पूंछ और फिर मुजफ्फराबाद डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए जाएंगे। हतमी उम्मीदवारों के नामों की मंजूरी शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ देंगे। ईद उल फितर के बाद इंतखाबी मुहिम का आगाज किया जाएगा। मरियम नवाज का मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम खुद चलाने का फैसला। 10 अजला में मरियम नवाज खुद इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। पार्लिमानी बोर्ड मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में उम्मीदवारों के इंटरव्यूज करेगा। दरियाओं का रुख किसी सूरत तब्दील नहीं होने देंगे। पार्लिमान बोर्ड की सिफारिशात पर चेयरमैन मेरिट पर टिकट जारी करेंगे। तमाम उम्मीदवारान के इंटरव्यू मुकम्मल कर लिए हैं। सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी लतीफ़ अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड में आमदा इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारान के रिकॉर्ड 196 दरख्वास्तें जमा हुई हैं। 59 मुजफ्फराबाद डिवीजन, 61 पूंछ डिवीजन, 51 मीरपुर डिवीजन और मुहाजिरीन के हलकों से 25 उम्मीदवार ने दरख्वास्तें दी। पहली बार 9 खवातीन ने भी जनरल इलेक्शन में बराह रास्त हिस्सा लेने के लिए दरख्वास्तें दी। खुशी इस बात की है कि दरख्वास्तें जमा करने वालों में PSF, PYO, नौजवान वकला, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और PhD डॉक्टर्स शामिल हैं। पार्लिमानी बोर्ड में तमाम उम्मीदवार ने अच्छे अंदाज में इंटरव्यू दिए। मरकजी क़यादत के मशकूर हैं जिन्होंने बेहतरीन माहौल फराहम किया। उनका मजीद कहना था कि हमने गुज़श्ता 5 साल से अवामी राब्ता मुहिम कराची से ताओबड़ तक जारी रखी। अब ईद के बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में भरपूर इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इलेक्शन से कल सियासी मैदान में मुतहर्रिक साबिक उम्मीदवार असम्बली हल्का नीलम मौलाना पीर मजर शाह ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में बाकायदा शमूलियत अख्तियार कर ली। साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान ने उनके गले में माला डाल कर खुशामदीद कहा। मज़ीद तफसीलात राजा ब्रेज की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी मुजाहिद मंजिल पर मुनक्कदा तकरीब में साबिक उम्मीदवार असम्बली हल्का नीलम मौलाना पीर मजर सईद शाह ने अपने साथियों समेत आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली। तकरीब में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमाओं की कसीर तादाद मौजूद थी। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान, सरदार उस्मान अतीक, साबिक वज़ीर मुफ्ती मंसूर रहमान, चेयरमैन पार्लिमानी बोर्ड मुस्लिम कॉन्फ्रेंस राजा यासीन और दीगर ने इन्हें हार डालकर खुशामदीद कहा। इस मौके पर साबिक उम्मीदवार असम्बली पीर मजर सईद शाह ने कहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली है। अब इंशाल्लाह जमात के लिए दिन रात काम करेंगे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस दीगर जमातों का भी मुकाबला करेगी। इस मौके पर साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान ने मौलाना पीर मजर सईद शाह को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में बाकायदा शमूलियत इख्तियार करने पर मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। राजा ब्रेज, दुमेल न्यूज़, वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर। जेलम वैली में दिन ब दिन कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा होता जा रहा है, जबकि दूसरी जानब जिला इंतजामिया और पाक फौज SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए मुतरक है। इसी हवाले से बता रहे हैं अटिया से यूसुफ हमदानी। कोरोना वायरस के मरीजों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। दूसरी जानब पाक फौज और जिले इंतजामिया जेलम वैली की जो है मुश्तरका जो है वो गाजपी जारी है, जिसमें जो है मुतअद्दिद अफराद को मास्क न पहनने पर गिरफ्तार भी किया गया है। अगर हम तालीमी इदारों की बात करें तो जेलम वैली में जो है तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद हैं। तालीमी इदारे ने जो है प्राइवेट स्कूल ने जो है हुकूमती SOP की खिलाफ वर्जी की, जिसको कल जिले इंतजामिया सील कर दिया। कोरोना वायरस के केसेस की बात करें तो जेलम वैली में कोरोना वायरस की शरह 10% से ज़्यादा है। इस टाइम जेलम वैली में कोरोना वायरस के 450 से ज़्यादा केसेज जो पॉजिटिव आए, जिनमें से 70 से 80 केस जो है वो एक्टिव है। हुकूमती SOP के मुताबिक जो है वो उनको होम आइसोलेशन किया गया। बात की बात करें तो जेलम वैली में अब तक जो है वो 12 बात हुई हैं। तो कोरोना जो वैक्सीनेशन का अमल जो जारी है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर लटियावाला, तहसील हेडक्वार्टर पर चिकार और लीपा वैली और जेलम वैली को जुमले RSC में जो है वो कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। आजाद कश्मीर भर में बल्दिया मुलाजमीन एहतजाज पर। शहर भर में कचरा ही कचरा, जगह जगह गंदगी से वबाएं फूटने का खदशा। गलियां सड़कें कचरा कुंडी में तब्दील हो गई। दिन भर अरहम शेख ने मार्केटों में क्या देखा, आइए इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जी बिल्कुल नारेब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक हॉस्पिटल के बाहर जहाँ पर कचरे का एक बड़ा ढेर लगा हुआ है, जबकि इसकी बैक साइड पे देखा जाए तो ये एक अस्पताल है। अस्पताल के बाहर ये हाल है तो बाकी शहर की गलियों का क्या हाल होगा। हमने पूरे शहर का विजिट किया है। जगह जगह जो है वो कचरे के ढेर लगे हैं। हर
गली, हर कोने, हर यहाँ तक कि सरकारी दफातर के बाहर भी जो है वो कचरे के बड़े जो है वो ढेर लगे हैं। शहरियों से जब बात की तो उनका यही कहना है कि एक तो पहले ही कोरोना का डर है, तो ऊपर से जो है वो ये नई वबाएं फूटने का खतरा है कि गेट से बाहर निकलते हैं तो हर जगह ताफ़न ही ताफ़न है, बदबू ही बदबू है। कोई ऐसी जगह नहीं है, पार्क, हॉस्पिटल या कोई सरकारी दफ्तर या कोई आम शहरी का घर, हर जगह कचरे के ढेर लगे हैं। 2 हफ्ते गुजर चुके हैं लेकिन जो है वो बल्दिया अभी तक इस कचरे को नहीं उठा रही। बल्दिया मुलाजमीन का यही कहना है कि जब तक हुकूमत वक्त हमारे मुतालबात नहीं मानते तब तक हमारा ये एहतजाज जो है वो जारी रहेगा, तब तक हम शहर में से कहीं किसी जगह से भी कचरा नहीं उठाएंगे। जी, हकीकी बेनोई सगी बहन रिश्तेदारों ने जमीन हथियाली, जुल्म तशद्दुद मामूल बन गया। बेड़ी हल्का कोटला की रिहायशी खातून दाद रस्सी के लिए सहाफियों के पास पहुंच गई। डुब्बा बेड़ी हल्का कोटला की रिहायशी खातून सफीना बीबी जोजा मकबूल हुसैन ने सहाफियों को बताया कि इसके हकीकी बेनोई औरंगजेब और शमीम अख्तर अकबर समेत दीगर ने जालसाजी से मेरी जमीन हथियाली, एक कच्चे मकान डारे पर भी कब्जा जमा लिया, मेरे खावंद को धमकियां देकर भगा दिया जिसकी कोई खबर नहीं है। जब पटवारी के पास गई तो जवाब मिला कि तुम्हारे रिकॉर्ड में कोई जमीन नहीं है, हालांकि 2 कनाल अपनी जमीन थी जिसे बेनोई और दिगर ने जालसाजी से हथिया लिया। बेनोई औरंगजेब कातली है, मेरी बहन और बेनोई दोनों जादूगर भी हैं। वो मेरे वालदेन पर भी जुल्म करता रहा है। मेरी बहन शमीम अख्तर ने मेरे हक मेर के 50,000 भी खा लिए। मैं मांग कर और मेहनत मजदूरी करके मुश्किल से गुजारा करती हूँ। किसी के घर पनाह ले रखी है। एसएसपी को दरख्वास्त भी दी जिनकी हदायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा मुझे और मेरे बच्चों को खतरा है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म, चीफ जस्टिस, IG पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और जमीन वागजार करने का मुतालबा किया है। रमज़ान मुबारक में जहां सहर अफ्तार में मुख्तलिफ पकवान इस्तेमाल किए जाते हैं तो वहीं मुजफ्फराबाद के शहरी कश्मीरी अचार का भी इस्तेमाल करते हैं जो मैदे के लिए भी मुफीद समझा जाता है। मज़ीद तफसीलात मलिक शफी की रिपोर्ट में। रमज़ान मुबारक में जहां सहर अफ्तार में मुख्तलिफ पकवान इस्तेमाल किए जाते हैं तो वहीं मुजफ्फराबाद के शहरी कश्मीरी अचार का इस्तेमाल भी करते हैं जो मैदे के लिए भी मुफीद समझा जाता है। शहरी में इसलिए खाते हैं, एक तो प्यास नहीं ज़्यादा लगती है, दूसरी है कि खाना खाने में ज़रा हाजमा हो जाता है, अच्छा हो रहता है, खाना ज़्यादा खाया जाता है इसमें, इसके ये खुसूसियत आते हैं। इसके लिए मैदा भी बहुत अच्छा रहता है। अचार में देसी मसाला जात के साथ साथ मुख्तलिफ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल भी किया जाता है, तब जाकर ये लजीज अचार तैयार होता है। इफ्तारी में ये इस्तेमाल करते हैं, रमज़ान में ज़्यादातर लोग रमज़ान में इस्तेमाल करते हैं ये। तो ये अभी मैं बाहर जा रहे हैं, हमारे दोस्त हैं, उनके लिए गिफ्ट ले। कश्मीरी अचार की ये खास बात है कि ये साल के 12 महीने इस्तेमाल किया जाता है। मलिक शफीक, दोमेल न्यूज़, मुजफ्फराबाद। दोमेल न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए दोमेल न्यूज़ मुजफ्फराबाद।